Hello everyone. Student, till now I have told you and three chapter of fundamental geography and two chapters of environmental geography. Now I am going to start the revision of chapter second of environmental geography, physiography and structure. And we will start with the revision of this chapter. It will take 5 6 days minimum, 1 week it will take, because someone is saying there is problem in this chapter, so I am revising again. And after that we will start the next chapter of fundamental geography. You have to learn all these chapter will come in pre midterm, and there will be online test also, so I will give you syllabus also for online test. So learn these chapters and watches these videos, because we will not repeat these chapter again and again. I am telling you this thing, watches these video. Still some students are not watching these videos, so watch these videos and watch again and again, then you will better understand the things. So let's start with topic physiography and structure. Yes student, today we will start revision of chapter 2, and the name of chapter 2 is structure and physiography. What is physiography? Physiography means relief feature of any place. किसी भी place के relief features, that is known as physiography. As you know, I have told you in the origin of the earth that our earth is 4.6 billion years old, and I have also told in starting our earth was like gaseous form, in liquid form, then it becomes solid, and that is also barren land. Nothing was there on the land. So in these years, so there are lots of changes on the earth. तो changes, how the changes became, there is two forces जो कि कहाँ जिन्होंने अर्थ पर चेंजेस लाए. विच टू फोर्सेस आर देयर? वन इज द एंडोजेनिक फोर्सेस एंड अनदर वन इज द एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है? एंडोजेनिक फोर्सेस, द एंडोजेनिक फोर्सेस आर द एनर्जी इमेनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, यानी कि अर्थ से जो एनर्जी आती है उसको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. कैसे? अर्थ से कौन सी एनर्जी आती है? जैसे रेडियो एक्टिविटी एनर्जी, टाइड्स आते हैं, टाइडल फ्रिक्शंस, रोटेशनल, अर्थ इज रोटेटेड ना, तो रोटेशनल फ्रिक्शंस जो आते हैं उनसे जो जिसके कारण से क्या होते हैं, अर्थ के काय वोल्केनिक इरप्शंस हुए, उनकी वजह से जो चेंजेस अर्थ पर हुए, दैट इज नोन एज द एंडोजेनिक फोर्सेस. सेकेंड वन इज द एक्सोजेनिक फोर्सेस. अब ये विद इन द अर्थ है, एंडोजेनिक विद इन द अर्थ, यानी कि एक्सोजेनिक आउटसाइड द अर्थ. तो आउटसाइड द अर्थ विच फोर्सेस, एनर्जी तो सबसे ज़्यादा वी गेट फ्रॉम द सन, यानी कि सन की एनर्जी से जो भी चेंजेस होते हैं. इसके अलावा विंड एनर्जी से जो भी चेंजेस होते हैं, दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस. On the basis of the variations and geological structures, we can divide India into three geological division. One is the peninsular block, another one the Himalaya and the peninsular mountain, and Indo-Ganga Brahmaputra plain. In 9th standard you have read about these topic, and you have read that in first you should know what is mean by peninsular. हम बार बार इसमें वर्ड आ रहा है, तो यू शुड नो व्हाट इज पेनिनसुलर. तो द लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय इट्स आर इंडिया, हेयर इज दैट इज अरेबियन सी, Bay of Bengal, and Indian Ocean.
this part is known as peninsular part. Why this is? Because it is surrounded by three sides from the oceans या water bodies. We can say water bodies. The area that is surrounded by water bodies from three sides, that is known as the peninsular. And globe क्या होते हैं? What is globe? That कि कोई भी थ्री पार्ट्स हैं, जैसे वन किसी भी कारण से एक पार्ट या तो नीचे चला जाए या ऊपर आ जाए, दैट इज़ नोन एज ब्लॉक. ये ब्लॉक में डिवाइड हो गया. तो हमारे इस पार्ट की ऐसे ही फॉर्मेशन हुई है जब जो है हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट कोलाइड हुई, तो हमारा जो है कुछ पार्ट जो है वो ऊपर उठ गया और दो पार्ट और कुछ पार्ट जो है वो नीचे चले गए, तो इसलिए उनको ब्लॉक कहा जाता है. तो यहाँ पर जितने भी माउंटेन हैं दैट आर द ब्लॉक माउंटेन. तो दीज आर द कॉल्ड द पेनिनसुलर ब्लॉक. इसको हम पेनिनसुलर ब्लॉक कहते हैं. नाउ द हिमालय एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन. As you know, in our north there is Himalaya mountain. Here is Himalaya mountain, जो है हिमालयन रेंज भी बोलते हैं. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड हिल्स? हिल्स इज़ ओनली वन होती है और रेंज जो है सीरीज़ ऑफ द माउंटेन. माउंटेन की सीरीज़ होती है, दैट इज़ नोन एज द रेंजेस. उनको रेंजेस कहा जाता है. और जो है हिल्स होगी वो एक होगी. तो हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन इन द नॉर्थ, एज यू नो, एयर इज़ हिमालय माउंटेन. हमारे यहाँ पर हिमालय माउंटेन है. These are form of the sedimentary rocks. सेडिमेंट्स से की रॉक से बने हुए ऐसे, जैसे शायद वैसे ये दिस इज़ योर रिवीजन. और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट कि यहाँ पर एक पहले टेथीज सी होता था. वो सी जो है यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराई, दो प्लेट्स थी इनसाइड द, दे कोलाइडेड, तो टेथीज सी सेडिमेंट्स फोल्डेड लाइक दिस. यानी कि दोनों तरफ से आप प्रेशर दोगे तो ये फोल्ड हो जाएगा. तो टेथीज सी वॉज फोल्डेड लाइक दिस. तो ये क्या बने? फोल्ड माउंटेन. दीज आर द फोल्डेड माउंटेन. और यहाँ पर जो माउंटेन है ब्लॉक माउंटेन या फोल्ट माउंटेन कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दिस पार्ट, आर पेनिनसुलर पार्ट इज़ मेड अप ऑफ लावा, इग्नियस रॉक्स. और जो है हार्ड रॉक होती है. इग्नियस रॉक कभी भी फोल्ड नहीं हो सकती. इग्नियस रॉक्स में क्या आती हैं? फॉल्ट्स आती हैं. फॉल्ट्स क्या होती हैं? दरारें आती हैं. तो यहाँ पर जितने भी माउंटेन होंगे वो फोल्ड्स माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन होंगे. और जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? फोल्ड. When Indo-Australian plate and Eurasian plate collided, the sediments of the Tethys seas were folded. वो फोल्ड हो गए और उससे जो बना क्या बना? हमारा हिमालय माउंटेन. तो दैट इज़ अबाउट द हिमालयन. नेक्स्ट, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. When Himalaya mountain folded, you can see this is Himalaya mountain. हिमालय माउंटेन फोल्ड हो गया. तो यहाँ पर जो है यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर एक डिप्रेशन आएगा. भाई यहाँ से सेडिमेंट्स कोई भी चीज़ है यहाँ से हमने उठा दिए तो यहाँ पर क्या बन गया? एक गड्ढा बन जाएगा. जितना हिमालय माउंटेन है उतना ही हमारे इंडो ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है. तो ये पार्ट जो है ये एक डिप्रेशन बन गया. और दिस डिप्रेशन यानी कि जितना फोल्ड हुआ उसका उतना पार्ट जो है वो डिप्रेशन बन गया. और दिस डिप्रेशन was filled by rivers. Which rivers? Three rivers. Which three rivers? Indus River and its tributary, गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. और इससे जो है हमारे किसकी फॉर्मेशन हुई? दैट इज़ इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो ये सारा जो हमारा पार्ट है दैट इज़ द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. ये हमारा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, जितना हमारा हिमालय माउंटेन है उतना ही हमारा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है. क्योंकि जितना माउंटेन फोल्ड हुआ उतना ही डिप्रेशन हुआ. तो इस तरह हमारे ये तीनों जो है स्ट्रक्चर्स हमारे बने. अब पेनिनसुलर ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है ये मैं आपको बता रही हूँ पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में.
दिस इज़ द पेनिनसुलर ब्लॉक। ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर ब्लॉक। फर्स्ट तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हम पहले ही मैंने आपको बता दिया है, दिस इज़ अर्थ। कैसा है ये, बहुत रिजिड है। क्यों है रिजिड, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। किससे बना हुआ है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ रिजिड। इसलिए ये क्या है हमारा, बहुत रिजिड है। और कब, कौन से पीरियड में बना, कैम्ब्रियन पीरियड में। कैम्ब्रियन पीरियड में बना ये। कौन से, कहाँ से कहाँ तक होता है कैम्ब्रियन पीरियड, दैट इज़ 570 मिलियन टू 4800 मिलियन ईयर्स तक। ये आपके बुक में जियोलॉजिकल टेबल है, यू कैन सी कौन से कैम्ब्रियन पीरियड और कौन से कहाँ तक जो है होते हैं। तो 4800 मिलियन ईयर्स तक जो है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, रिजिड है, बहुत ओल्डेस्ट पार्ट है हमारा। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया में। सबसे पहले फॉर्मेशन किसकी हुई, हमारे पेनिनसुलर पार्ट की फॉर्मेशन हुई। नाउ ये कहाँ से कहाँ तक है, वेस्टर्न फ्लैंक से लेते हैं। इट इज़ फ्रॉम कच्छ, रन ऑफ कच्छ है गुजरात, यहाँ से अरावली रेंजेस, देन पैरेलल टू गंगा यमुना प्लेन। दिस इज़ गंगा यमुना प्लेन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये गंगा यमुना प्लेन है। देन इधर वेस्टर्न घाट, दिस इज़ वेस्टर्न घाट। देन ईस्टर्न घाट्स, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ पर ये छोटा नागपुर प्लेटू, दीज आर। फिर इधर भी हमारा जो है पार्ट मिलता है हमारे ईस्टर्न साइड में जो है कर्बी अनालॉग्स तक। एंड इधर दीज आर द मेघालय हिल्स, दीज आर द मेघालय हिल्स। तो दिस इज़ आर पेनिनसुलर प्लेटू। ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू है। अगेन कर्बी, सॉरी कच्छ, रन ऑफ कच्छ वेस्टर्न पार्ट, देन अरावली रेंजेस तक, पैरेलल टू द गंगा यमुना प्लेन। हेयर वेस्टर्न घाट, दिस इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट तक। इधर हमारे ये एक डिवाइडर है, फॉल्ट, दरार जिसे कहते हैं, मालदा फॉल्ट है। वो किसको अलग करती है, छोटा नागपुर प्लेटू एंड मेघालय हिल्स को। तो हेयर आर द मेघालय हिल्स, दीज आर द जो है आपने पढ़ी भी होंगी, जो है नागा पटकोई बम, दीज आर द गारो खासी जयंतिया पटकई बम, दीज आर द नागा मेघालय हिल्स कहलाती हैं। और कर्बी अनालॉग्स जो कि कहाँ है, आसाम में है। यहाँ तक हमारा जो है पेनिनसुलर ब्लॉक है, पेनिनसुलर ब्लॉक। इसमें रिवर्स कौन कौन सी रिवर्स हैं पेनिनसुलर ब्लॉक में, दैट आर द नर्मदा रिवर, तापी रिवर, नर्मदा रिवर, तापी रिवर। हेयर इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो ये रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इनका फ्लो किधर से किधर है, वेस्टर्न टू ईस्टर्न साइड। इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो है पेनिनसुलर पार्ट की जो स्लोप है वो किधर है, वेस्ट टू ईस्ट। ये सारी रिवर्स जो हैं हमारी यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, जो है कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी, महानदी, सारी डेल्टाज बनाती हैं। ट्राइंगुलर शेप होती हैं यहाँ पर इनकी जो है, तो ये सारी डेल्टाज बनाती हैं। नर्मदा और तापी रिवर दे मेड एस्चुरीज, क्योंकि ये इनकी स्लोप जो है ज़्यादा इधर एकदम रिफ्ट वैली बनाती हैं। ये जो है डेल्टाज नहीं बनाती, सीधे सीधे जो है स्टीप स्लोप होती है और डायरेक्टली ये कहाँ चली जाती हैं, ओशन में चली जाती हैं। इसलिए ये डेल्टाज नहीं बनाती क्योंकि स्टीप स्लोप है। और ये कहाँ से निकलती है, सेंट्रल प्लेटूज से जो है ये ओरिजिनेट होती हैं। और कहाँ मिलती हैं ये, अरेबियन सी में। तो जो अरेबियन सी की रिवर हैं, ये क्वेश्चन है बेटा, विच रिवर्स जो है ड्रेन आउट इन अरेबियन सी। तो यू कैन सी कोई और रिवर अरेबियन सी में नहीं ड्रेन आउट होती है, केवल हमारी कौन सी रिवर ड्रेन आउट होती है, नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। ऑल द रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना एंड these rivers Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, they all are drained out in Bay of Bengal. Only Indus river,
इंडस रिवर ऑल्सो दैट ड्रेन आउट इन अरेबियन सी, बट वो हमारे कंट्री में हम इसलिए नहीं उनको काउंट करते क्योंकि हमारे केवल हम जो है नॉर्दर्न पार्ट में वो हैं, बाकी वो पाकिस्तान में चली जाती हैं, इसलिए हम उनको ऐसे काउंट करते नहीं हैं, केवल हमारे नॉर्दर्न पार्ट में उनको काउंट करते हैं। तो ये हमारे जो है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो है हिल्स भी हैं। कौन कौन सी हिल्स हैं मैंने आपको बताई, अरावली हिल्स, दीज आर द अरावली हिल्स। विंध्याचल हिल्स, ये विंध्याचल है। ये सतपुड़ा रेंज है, रेंज होती है, मैंने फिर से बताया, विंध्याचल भी रेंज है, सतपुड़ा भी रेंज है। अरावली हिल्स है। इधर जो है जावेदी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, ये ईस्टर्न घाट की सबसे जो है हाईएस्ट हिल है जो है महेंद्रगिरी हिल्स। और ये जो है आंध्र प्रदेश में पालकोंडा, वेलोकोंडा, मैंने आपको बहुत सारी हिल्स के नाम बताए थे। तो जो है नल्लामाला, वेलीकोंडा और जो है पालकोंडा, दीज आर द हिल्स इन द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये हिल्स हैं। तो ये पेनिनसुलर ब्लॉक में हमारे यहाँ पर आती हैं। क्या अंतर है, क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुलर प्लेटू एंड हिमालय माउंटेन। तो दे आर फॉर्म्ड ऑफ द इग्नियस रॉक्स, दे आर फॉर्म्ड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज आर द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड दीज आर द यंगेस्ट पार्ट, सबसे बाद में बना हमारा जो है, दीज आर द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, हमारे यंगेस्ट पार्ट है। फिर आपके को इसमें जो है हिमालय माउंटेन, दीज रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स। क्या होती है पेरिनियल रिवर्स, द रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, जो सारे साल बहती हैं, क्योंकि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर, ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है हिमालय माउंटेन, फिर ग्लेशियर है तो ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर, तो दैट्स वाई दे आर पेरिनियल रिवर। बट दीज रिवर्स जो है ये सीजनल रिवर, ऐसे तो हम नहीं कहते कि ये ख़त्म हो जाती हैं, बट इन रिवर में रेनी सीजन में वाटर ज़्यादा होता है और वैसे इनमें पानी कम रहता है। तो दीज आर द this is about the peninsular block, Himalaya mountain and Ganga Brahmaputra plain. This is the Ganga Brahmaputra plain. The length of the Ganga Brahmaputra plain near about equal to the Himalaya. हिमालय के इक्वल है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा हम कम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा कुछ पार्ट जो है हिमालय माउंटेन तो यहाँ तक है, इससे ये चल रहा है, तो ये पार्ट जो है पाकिस्तान और उसमें चला जाता है, इसलिए हमारा हम जो पार्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का वो थोड़ा कम बताते हैं और हिमालय माउंटेन का ज़्यादा, क्योंकि हिमालय माउंटेन हमारा सारा यहाँ से काउंट होता है, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हमारा पंजाब से काउंट होता है। इसलिए साइज़ अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि जितना पार्ट फोल्ड होगा तो उतना बड़ा डिप्रेशन होगा, तो उतना बड़ा ही जो है डिप्रेशन होगा ना जितना पार्ट फोल्ड होगा। तो इसलिए ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए जो है हमारा पार्ट थोड़ा कम दिखाया जाता है। तो दिस इज़ अबाउट 3। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन दीज ऑल द 3 कि कौन कौन से इनके फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ऑल द 5 फिजियोग्राफी ऑफ